Good morning, student. So from today we are just starting a new topic of 11th standard, that is magnetism. आज से हम एक और बदल करने वाले हैं कि आपके पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश और हिंदी ये दोनों रहेगा। तो आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए। You know very well that as far as magnets are concerned, people will have an idea about magnet not recently but nearly 600 before Christ. People knows very well what is magnet, but it is only in 20th century it becomes possible for human being to make use of this property of magnetism in science and technology, because up to 20th century there was not a scientific research up to that level. No doubt in 1544 to 1603 Sir William Gilbert was the first person who investigated magnetism. The complete credit goes to a scientist, William Gilbert, who is responsible, who had investigated what this magnetism is. And also William Gilbert had proved that our planet Earth, it behaves like weak magnet. Planet Earth, it behaves like what? A weak magnet. Later on, there was another scientist that you know very well. What he had performed, he had passed the electric current to flow through a conductor, and he observed that when current is allowed to pass through a conductor, then magnetic field is produced surrounding to it. That magnetic lines of forces, they are what? Circular and concentric. And who is that person? You know very well. That person is Hans Oersted. So Hans Oersted, he is somewhere between 1771 to 1851, maybe like that. So Hans Oersted, he had given that there is a link between electricity and that of magnetism. So electricity and magnetism, they are interrelated. It was very first proved by Hans Oersted. Now later, after 1831 to 1879, in between 1831 to 1879, Sir James Clerk Maxwell, he proved that electricity and magnetism, no doubt they are the two different aspects of same fundamental force field. Electricity and magnetism, they are what? The two different aspects, but of what? Same fundamental force field. Now, as far as magnets are concerned, each of you had seen that bar magnet since from your childhood. Now, can you just tell me that as far as bar magnet is concerned, here I will draw a block and I will say that it is a bar magnet. So every bar magnet has how many poles? किसी भी मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 पोल होंगे.
एक पोल को हम नाम देंगे N और दूसरा पोल क्या होता है S। N माने नॉर्थ पोल, S माने साउथ पोल। N मीन्स नॉर्थ पोल, S मीन्स साउथ पोल। मैग्नेट क्या करेगा अपने आसपास? अपने आसपास मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। व्हाट मैग्नेट विल प्रोड्यूस टू इट्स सराउंडिंग? मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड टू इट्स सराउंडिंग। वो मैग्नेटिक फील्ड काय का बना होता है? मैग्नेटिक फील्ड किस चीज से बना होता है? जब मैं कहता हूं कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, व्हेन आई से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट सराउंडिंग टू द मैग्नेट, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज मेड अप ऑफ व्हाट? काय का बना होता है मैग्नेटिक फील्ड? आप सभी को मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, कहां से जनरेट होगी? These magnetic lines of forces, they always originate from North Pole and they will come to end on South Pole. हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की उत्पत्ति कहां से होती है? नॉर्थ पोल से। और कहां जाके वे खत्म होती है? साउथ पोल पे। जैसे आई कैन शो दैट हियर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स and that line of force will come to end on a south pole. So magnetic field is made up of magnetic lines of forces. Magnetic field ये magnetic lines of forces से बना होता है। These magnetic lines of forces originate from north pole and they will come to end on south pole. ये magnetic lines of forces कहां से शुरू होती है? इनकी उत्पत्ति होती है नॉर्थ पोल से और वे कहां जाके समाप्त होती है? वे जाके समाप्त होती है साउथ पोल पे। इट मीन्स हियर आई कैन शो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे विल कम टू एंड ऑन व्हाट? साउथ पोल। दे विल कम टू एंड ऑन साउथ पोल। ध्यान से सुनिए। Whatever may be size of magnet, shape of magnet, मैग्नेट चौकोन है, गोल है, त्रिकोण है, कैसा भी है। मैग्नेट का साइज इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, कोई फर्क नहीं करता। Whatever may be size, whatever may be shape of a magnet, हर मैग्नेट को कितने पोल होंगे? दो पोल। एक पोल नॉर्थ पोल कहलाएगा, दूसरा पोल साउथ पोल। एवरी मैग्नेट, वेदर whatever may be its shape, whatever may be its size, whether it is small or big, whether it is rectangular or whether it is circular, whatever may be shape and size of magnet, every magnet has two poles. One is north pole and other is south pole. आप कहेंगे ऐसा नहीं है। आप अगर इस मैग्नेट को ब्रेक किया, you may broke this magnet into two pieces. Well, magnet is broken into two pieces because you are trying to separate one pole from the other. मुझे एक पोल को दूसरे पोल से सेपरेट करना है। क्या करूंगा मैं? मैग्नेट के दो टुकड़े। Well, magnet is broken. अगर मैंने मैग्नेट को तोड़ दिया बच्चों तो क्या होगा? Here I will get two pieces. क्या देखता हूं मैं कि इवन व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, भले ही आपने मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए, बट एवरी पीस बिहेव लाइक ए मैग्नेट, लेकिन फिर भी हर पीस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसमें इट मीन्स एवरी पीस ऑफ ए मैग्नेट विल हैव अगेन टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप कहेंगे भैया और टुकड़े करके देखिए, शायद हो सकता है पोल अलग अलग हो जाए। अगेन आई विल ब्रेक दिस पीस ऑफ मैग्नेट इनटू फर्दर स्मॉलर पीस। फिर से मैंने इस टुकड़े के और दो भाग किए। आई विल गेट टू स्मॉलर पीस। अगेन फिर से मैं क्या देखता हूं कि ये छोटे पीस फिर से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब हर पीस पे दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक दूसरा साउथ पोल।
It means it is not possible for me to separate one magnetic pole from the other. Means isolated monopole, isolated magnetic monopole do not exist. Isolated का मतलब समझते बच्चों? Isolated मतलब अलग से, विभक्त, सेपरेट. So isolated magnetic pole do not exist. Till today, research is going on whether it is possible to have the existence of monopole. आज भी दुनिया में इसी बात पे संशोधन हो रहा है कि क्या मैग्नेटिक पोल का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से पॉसिबल है. बिकॉज वी नो द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. वन इज नॉर्थ पोल, अदर इज साउथ पोल. हमें मालूम है कि मैग्नेटिक पोल ये जोड़ी के रूप में ही रहेंगे. नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा साथ रहेंगे. हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सेपरेट वन मैग्नेटिक पोल फ्रॉम द अदर. या दूसरी भाषा में कहेंगे आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल नहीं है. आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट. आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट. अब तीसरा अगर हमें देखना है, और आप लोगों को सभी को मालूम है कि when we are having the two magnets, this is north pole, south pole, north pole and that of south pole. क्या हम दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक दूसरे के आसपास लाएंगे तो क्या when the two poles of magnet they are brought near to each other, what is your experience? आपका क्या अनुभव है? The two magnet they repel each other. जब भी आप दो सेपरेट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, आपका यह अनुभव रहा होगा कि वे मैग्नेट एक दूसरे को आपस से क्या करेंगे? दूर ढक लेंगे. When the like poles of magnets they are brought together, not necessarily north and north. You may have south pole of magnet is brought you are trying to brought south pole of magnet towards the south pole. Even in this case, what you will observe that like poles of magnet they always repel. Whereas अगर हम अपोजिट पोल, मैग्नेट के अपोजिट पोल्स कौन से? साउथ एंड नॉर्थ पोल. उसे नजदीक लाने की कोशिश की, इमीडिएटली यू फाइंड दैट दीज टू मैग्नेट इमीडिएटली दे अट्रैक्ट एंड दे विल स्टिक टू ईच अदर. नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो अलग अलग मैग्नेट, एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, उसे अगर नजदीक लाने की कोशिश किए, आपका यह अनुभव रहा होगा जैसे ही आपके दो मैग्नेट नजदीक आएंगे इमीडिएटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे स्टिक टू ईच अदर, वह आपस में जुड़ जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अनलाइक पोल्स बिटवीन अनलाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ व्हाट? अट्रैक्शन. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल. अनलाइक का मतलब एक नॉर्थ दूसरा साउथ. Like poles they repel each other. Like poles they will what? Repel each other. सरीखे पोल आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. सेम पोल दे विल रिपेल ईच अदर. सेम पोल दे विल रिपेल ईच अदर. Now as far as William Gilbert is concerned, विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा था? Earth behaves like a magnet, weak magnet. William Gilbert was the first who announced that our planet Earth it behaves like a magnet. और आप लोगों का अनुभव है, अगर आपके पास घर में मैग्नेट होगा तो उसको धागे से बांध के आप देख लीजिए. When suppose this is our planet Earth, this is equator of Earth. Our Earth is rotating about this axis of rotation.
This is geographical North Pole, this is geographical South Pole. And according to Gilbert, Earth behaves like a weak magnet. अगर Earth ये मैग्नेट बोल के बिहेव करता है, इसका मतलब कहीं तो उसका नॉर्थ पोल होगा और कहीं तो साउथ पोल होगा, और Earth के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. So as far as Earth is concerned, जहां तक पृथ्वी का सवाल है, ध्यान में रखना बच्चों कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, भौगोलिक नॉर्थ पोल, इट बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक साउथ पोल, एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल इट बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. ध्यान से सुनिए, ये क्या है? दिस इज जियोग्राफिकल साउथ पोल, बट इट बिहेव्स लाइक व्हाट? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. हियर इट इज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, आप सभी को मालूम है, but it behaves like what? Magnetic South Pole. तो जब अर्थ एक मैग्नेट बोल के एक्ट करेगा तो उस अर्थ के दो बिंदु पे, एक बिंदु पे नॉर्थ पोल फॉर्म होगा, दूसरे बिंदु पे क्या फॉर्म होगा? साउथ पोल. तो ये नॉर्थ पोल कहां फॉर्म होता है? जियोग्राफिकल साउथ पोल. उल्टा है, ध्यान में रखिए. नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज फॉर्म एट व्हाट? जियोग्राफिकल साउथ पोल. और मैग्नेटिक साउथ पोल कहां फॉर्म होगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल. इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से शुरुआत होंगी उनकी? दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे विल कम टू एंड ऑन व्हाट? साउथ पोल. सो हियर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे विल कम टू एंड ऑन ए साउथ पोल. So here, that entire magnetic field, it consists of magnetic lines of forces which start from north pole and they will come to end on south pole. अब हमें मालूम है कि हम लोग यहां कहीं तो हमारा अस्तित्व है. We are somewhere in India. हम भारत में कहीं तो किसी प्रदेश में रहते हैं. And if I hold or if I suspend द मैग्नेट, मैग्नेट को मैंने धागे से बांध लिया, आई विल सस्पेंड द मैग्नेट. वेर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, कहीं भी आप मैग्नेट को धागे से फ्रीली सस्पेंड कीजिए, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? दैट व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली और मैग्नेट इज पाइवोटेड, पाइवोट करना है ना, so when magnet is suspended freely or pivoted, what you will observe? हम ये पाएंगे that magnet align itself in what? North south direction. हमेशा वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाके स्थिर होगा. When a magnet is suspended freely or it is pivoted, it is our common observation that a magnet will come to rest or it will align itself in what? In north south direction. किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पे या पाइवोट करने पे वो अपने आप को नॉर्थ साउथ इस दिशा में अलाइन कर लेता है. समझ में आया बच्चों? अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसा कि ये आपका टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर आपको बाय एनालॉजी पढ़ना है. देयर इज मच मोर सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दैट ऑफ ए मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल साउथ पोल. इन इलेक्ट्रिसिटी वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चैप्टर हो गया. इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी. इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन
चार्ज की पोलैरिटी ये कैसी है, अलग है, विपरीत है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव। एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस 2l अबाउट द सेंटर O। मैग्नेटिक डायपोल में क्या होगा, in magnetic dipole also we are having a formation of north pole and south pole, because every magnet will have two dipole, at one end north pole, at other end south pole। आप ध्यान रखिए, magnetic pole or the pole strength of north pole, pole strength of north pole, it is denoted by plus qm, and the pole strength of south pole, it is minus qm। means north pole behaves like positive electric charge, south pole behaves like what, negative electric charge। so there is an analogy, look at this, plus q minus q, plus qm minus qm, these are the electric charges, these are the magnetic charges, you can say it, pole strength of north pole, pole strength of south pole। the two equal and opposite charges separated by a finite distance 2l। so here also the distance of separation between the two poles of magnet, they are separated by 2l। दो मैग्नेटिक पोल के बीच का अंतर भी क्या लेंगे हम, 2l। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वन ऑफ द चार्ज, whether it is plus q or minus q, its magnitude is what, same, into distance of separation between them। magnetic dipole moment, magnitude of charge, pole strength, multiplied by distance of separation between them। तो जहां तक magnitude of electric dipole moment and magnitude of magnetic dipole moment is concerned, सेम एनालॉजी, दोनों भी क्या है, सेम है। बट रिमेंबर, आप ध्यान रखिए, इन केस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल यू कैनॉट सेपरेट वन पोल फ्रॉम द अदर, मीन्स देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल में ऐसा नहीं है, आप एक चार्ज का सेपरेट अस्तित्व हो सकता है, यू कैन हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट पॉजिटिव चार्ज और सेपरेट नेगेटिव चार्ज। यही सबसे बड़ा अंतर है, यही सबसे बड़ा अंतर है। और एक अंतर क्या है, देखिए, मैग्नेट अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड काय का बना होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से शुरुआत होती है, नॉर्थ पोल से। अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ने नॉर्थ पोल पे जन्म लिया तो डेफिनेटली ये घूमते हुए इसका अंत कहां होगा, साउथ पोल पे। इफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स it originates from north pole, definitely it will come to end on a south pole। it means here it will form a closed loop। इसका मतलब क्या हो गया, हर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये लूप के फॉर्म होते, एवरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स will exist in the form of a closed loop। यहां लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हुई, यहां आके खत्म। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स if it originates at north pole, definitely it has to come to end on a south pole। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसका जन्म नॉर्थ पोल पे हुआ, उसका अंत या मृत्यु कहां होगी, साउथ पोल पे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप लोग जानते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है और एक नेगेटिव चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड टू इट्स सराउंडिंग। मैग्नेट क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, स्फेरिकल इन शेप। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या करेगा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज विल प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड काय का बना होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से बना होता है। नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी काय का बना होता है, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, वेदर चार्ज इज पॉजिटिव और चार्ज इज नेगेटिव, इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस. दोनों ही परिस्थिति में उन चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फीयर तैयार होगा. इन बोथ द केसेस देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड टू इट्स सराउंडिंग. अब आप ध्यान रखें, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को ध्यान से देखा होगा, यहां मैंने एरो बनाए, इन दोनों में क्या फर्क है? पहले वाले फिगर में मैंने बताया कि एरो ये सभी एरो कहां जा रहे हैं? बाहर की दिशा में जा रहे हैं, चार्ज से बाहर की ओर जा रहे हैं, यहां चार्ज की ओर आ रहे हैं. इन द फर्स्ट फिगर आई हैव शोन दैट दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, whereas in second figure lines of forces they are shown to be moving towards the negative charge. ऐसा क्यों किया हमने? ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और ये सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस ये क्या है? दे आर अलोंग द रेडियस, वो रेडियस के अलोंग है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज they are radially outward in nature. सिंगल लाइन देखो, इंग्लिश कितना बेहतरीन लैंग्वेज है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दे आर रेडियली आउटवर्ड इन नेचर. इसमें एमसीक्यू बन सकता सीईटी के लिए. वैसे ही द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए नेगेटिव चार्ज इज रेडियली, अब क्या कहेंगे आप? इनवर्ड, अंदर की ओर, ये आउटवर्ड, बाहर की ओर. बट अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां से पॉजिटिव चार्ज, दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगी पॉजिटिव, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरह से होगी? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की दिशा में, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की दिशा में. लेकिन यहां ये जरूरी नहीं कि ये जनरेट हुए वाली पॉजिटिव लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज, सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज, इट इज नॉट नेसेसरी, यहां यह जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज पे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये नेगेटिव चार्ज पे आए. मीन्स नो डाउट इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड टू इट्स सराउंडिंग, बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट हियर द लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर नॉट in the form of closed loop, whereas in case of magnetic field, जहां की मैग्नेटिक फील्ड में क्या जरूरी था? अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल पे जनरेट हुई तो उसका अंत साउथ पोल पे होना यह तय है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऐसा नहीं है. पॉजिटिव चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होगी, निगेटिव चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्सेस खत्म होते हुए दिखेगी. जरूरी नहीं कि हर लाइन ऑफ फोर्स ये क्लोज लूप फॉर्म करे. तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कुछ प्रॉपर्टीज एक के बाद एक हम, आप सभी को पता है, इसमें कोई पढ़ाने जैसा नहीं है. आपको लोअर क्लासेस 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपके टीचर्स लोगों ने स्कूल में पढ़ाया होगा. क्या आप जानते हैं व्हाट इज सोलोनॉइड? डू यू नो व्हाट इज ए सोलोनॉइड? Suppose we are having a coil which consists of large number of turns of thin insulated copper wire whose length is very large as compared to that of what? Radius of that coil. It is called as a solenoid. और किसी भी सोलोनॉइड में करंट पास करने पे उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड. When current is allowed to pass through a solenoid, it will produces a magnetic field to its surrounding. It means, इसका मतलब ही क्या हुआ? It behaves like a magnet. वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. इसका मतलब इसके एक छोर पे नॉर्थ पोल
और दूसरे छोर पे क्या होगा, साउथ पोल. इट मीन्स एट वन ऑफ इट्स एंड देयर इज ए नॉर्थ पोल व्हाइल एट द अदर एंड देयर इज ए साउथ पोल. ठीक है बच्चों. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड produced here, it consists of magnetic lines of force, and these magnetic lines of force, they start from north pole and they will come to end on a south pole. They will come to end on a south pole. Means magnetic lines of forces produced either by a solenoid which behaves like a magnet or a bar magnet. Magnetic lines of forces always exist in what? Closed loop form. Magnetic lines of forces are always in closed loop form, but it is not the case with what? An electric lines of forces. अब और प्रॉपर्टी आप लोगों ने 9th, 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी. सपोज हियर आई विल से दैट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. मैंने कहा यहां ये मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर हम बार मैग्नेट. नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से जनरेट होगी और साउथ पोल पे जाके क्या हो जाएंगी, एंड पे. अगर आपको पूछा जाए कि किसी एक बिंदु पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड always denoted by a letter B. What B represent? B represent the strength of magnetic field. It is a vector, means it has a direction. Whenever I have to find out what is the strength of magnetic field at any point in the region of magnetic field, ये मैग्नेट है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया. मैग्नेटिक फील्ड इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड P इज एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. समझिए P एक पॉइंट कहां है, मैग्नेटिक फील्ड में. जहां मुझे क्या जानना है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो तरीका क्या है, यू सिंपली ड्रॉ द टेंजेंट. आई विल ड्रॉ द टेंजेंट. You draw the tangent in the direction of magnetic lines of force. Lines of force का डायरेक्शन इस तरीके से. अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट to the magnetic field at that point where we want to find out the direction of strength of what, magnetic field, then the tangent drawn, see यार यहां हमें टेंजेंट ड्रॉ किया in the direction of magnetic lines of force will gives you the direction of magnetic field at that point. It will give you what? The direction of magnetic field at that point. अगला पॉइंट हम देखेंगे, how you will define. अगर किसी ने आपसे पूछा, आप मैग्नेट जानते हो, आप कहेंगे हाँ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है. और अगर कोई आपसे सवाल करता है कि सपोज हियर देयर इज ए मैग्नेट, दैट मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड टू इट्स सराउंडिंग. दैट मैग्नेटिक फील्ड इज मेड अप ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. These lines of forces they start from north pole, they will come to end on what, south pole. ये सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस दिशा में जाएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर से आपको क्या निकलना है, द क्वेश्चन इज फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P. आपसे पूछा गया है कि P इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड बताइए. व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ ए यूनिट एरिया सराउंडिंग टू दैट पॉइंट. आप चाहे तो सर्कल बनवा सकते हैं. व्हाट इज द एरिया, ड्रॉ ए यूनिट एरिया सराउंडिंग टू दैट पॉइंट where you have to find out the strength of magnetic field.
जिस बिंदु पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, यहां एक और बिंदु है, समझिए क्यों, I will draw a unit area. Draw a unit area surrounding to a given point and count how many magnetic lines of forces they were passing normally through that unit area. क्या करना है आपको, किसी भी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली ड्रॉ ए यूनिट एरिया सराउंडिंग टू दैट पॉइंट, उस बिंदु के आसपास एक यूनिट एरिया ड्रॉ कीजिए एंड काउंट हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर पासिंग नॉर्मली थ्रू इट। सिर्फ आपको गिनना यह है कि कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस उसको नॉर्मली पास होती है। दैट विल गिव्स यू व्हाट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू दैट ऑफ एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स टू दैट ऑफ एरिया। अगली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसा कि हमने अभी देखा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझिए ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये स्टार्ट हुई ए पॉइंट से और कहां जा रही है, बी पॉइंट। व्हेन आई विश टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या करेंगे हम, वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो तरीका क्या है, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा उस बिंदु पे। किस दिशा में, जिस दिशा में लाइन ऑफ फोर्स आगे बढ़ रही है। सपोज दैट हियर देयर इज वन मोर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट सी एंड पॉइंट फ्रॉम सी टू डी। हमने क्या कंसीडर किया, ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां इंटरसेक्ट हो रहे, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट होते, पॉइंट पी। अगर मैंने पॉइंट पी को लाइन ए बी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ए बी का पॉइंट कंसीडर किया तो वहां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये। बट लेकिन P is also a point on second magnetic lines of force. तो नियम के अनुसार to find the direction of magnetic field at point P, when P is a point on that magnetic lines of force CD, then also I have to draw a tangent like this and it will gives me the direction of uniform magnetic field at point P. So what happens, क्या हुआ, एक ही बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं होते, लेकिन यहां मुझे एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शन मिल रहे, दो, विच इज अगेंस्ट द रूल, इट विल वायलेट द रूल्स। सो whenever two magnetic lines of force intersect each other at the point of intersection, we will not have a unique direction of magnetic field. जब भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें केवल एक और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं मिलता, जो कि नियम के खिलाफ है, विच इज अगेंस्ट द रूल। इसीलिए एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कि कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स that no two magnetic lines of force should ever intersect each other. No two lines of force should ever intersect each other. Now we will see one by one that density of lines of force. क्या बोलेंगे हम? The region where, suppose here we are having a magnetic field
and magnetic field is what? It is a non-uniform magnetic field. इसका मतलब P इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है. B1 is the strength of magnetic field at point P. There is another point Q where the strength of magnetic field is B2. जब अलग अलग बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी तो इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें देखना यह है कि जिस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, द पॉइंट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, एंड और जिस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है, कमजोर है, द पॉइंट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वीक और पुअर. व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन आई से दैट इट इज P is at strength of magnetic field at point P is stronger than the strength of magnetic field at point Q? तो फर्क कहां आता है? To find the strength of magnetic field, draw a unit area around that point. ड्रॉ कर लिया यूनिट एरिया, यहां भी एक यूनिट एरिया. नाउ काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस which are passing through a unit area. क्या करना है हमें? उस यूनिट एरिया से कितने लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक विशिष्ट दिशा में जा रही है उसका काउंट करना है, उसकी गिनती करना है. यहां भी हम लाइन्स ऑफ फोर्सेस काउंट करेंगे. हम क्या पाएंगे कि जिस बिंदु पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था उस बिंदु के आसपास के यूनिट एरिया से ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस जा रही थी, जबकि जिस बिंदु पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वीक, कमजोर था, उसके आसपास हमने जो एक यूनिट एरिया ड्रॉ किया उसमें से बहुत कम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दिशा में जा रही थी. व्हाट वी विल ऑब्जर्व? द पॉइंट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वी ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दे आर डेंस, whereas the point where the strength of magnetic field is what? Weaker, magnetic lines of forces they are what? Widely separated. इसका मतलब क्या हुआ? जिस किसी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी, घनत्व कैसा होगा? ज्यादा. whereas the point where density of magnetic lines of force is small, it means the strength of magnetic field at that point is weak. तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना होगा. किसी बिंदु पे अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है इसका मतलब वहां मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दे आर क्राउडेड, डेंसिटी ज्यादा. किसी बिंदु पे जहां मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, वीक है, वहां मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दे आर रेयरली ऑकरिंग, सेपरेटेड, वाइडली सेपरेटेड. लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं जहां स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? वीक रहेगा. तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. ध्यान रखिए बच्चों, वेन एवर यू हैव टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, strength of magnetic field, how you will define that strength of magnetic field? The number of lines of forces per unit area. See here, suppose P is a point in the region of magnetic field and you have to define what is the strength of magnetic field at any point P in the region of magnetic field. We will draw a unit area around that point and we will count how many magnetic lines of forces they are passing normally through that unit area. Number of magnetic lines of forces which are passing normally through a unit area drawn around a point is called the strength of magnetic field at that point. How you will define? Number of
magnetic lines of forces which are passing normally through a unit area drawn around a given point will give you the direction of magnetic field, will give you the strength of magnetic field at that point. Means mathematically you can say vector B equal to phi upon A. Phi क्या होता है? What is this phi? Here magnetic field, strength of magnetic field means you can say in other word magnetic field equal to magnetic flux. Phi always represent flux, maybe electric flux, maybe magnetic flux. So magnetic flux is always the ratio of, magnetic field is always a ratio of magnetic flux to that of area. Magnetic flux to that of area. Now in general you can say the strength of magnetic field or magnetic induction, दोनों चलेगा. In old course people were calling this B as magnetic induction. So the strength of magnetic field or magnetic induction at any point in the region of magnetic field, it is defined as the ratio of magnetic flux per unit area. Magnetic flux per unit area, because when A equal to 1, B equal to phi. अब हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स phi क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आप हर बार फिजिक्स की क्लास में सुनते होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. ये फ्लक्स क्या है? व्हाट इज दिस फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स phi, इट सिंपली मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, एक ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर ए स्पेसिफिक एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा निर्धारित एरिया पे डिफाइन की जाती है. Whenever we define magnetic flux, it is defined over a specific area. So magnetic flux over a given area or magnetic flux through a certain area is nothing but number of magnetic lines of forces which are passing normally through that area in one particular direction is called magnetic flux. Let us consider the special case. Suppose we are having what? The surface area D, surface area A. We are having the surface area. A is the area to which magnetic field, strength of magnetic field B is normal. Now we want to define strength of magnetic field over the area A. How to define the strength of magnetic field B over the area A? Remember here that field B itself is normal to area. So the magnetic field B is equal to magnetic flux upon area. Magnetic flux upon area. How you can define the strength of magnetic field? It is the number of magnetic lines of forces which are passing normally through a given area A. And remember, magnetic field at any point P, strength of magnetic field at any point, that point may be here, maybe here, maybe here, maybe here, maybe here. The strength of magnetic field at any point on area A is equal to magnetic flux upon area, because it is a special case where flux is perpendicular to the area. So magnetic flux per unit area. What is the SI unit of flux? Weber. SI unit of area, it is meter square. Remember,
that strength of magnetic field, it is measured either in SI unit of Weber per meter square, or there is one more unit, that is Tesla. 1 Tesla is equal to how many Gauss? 1 Tesla equal to what? 10 to the power 4 Gauss. 1 Tesla equal to 10 to the power 4 Gauss. So, in our first period, we had discussed some basic concept regarding magnetism, and in the next period we will see that derivation for magnetic induction along the axis, along the equator, and at any point of a magnet. So let us revise quickly what we had studied. Already you know what are the different properties of magnetic lines of forces, but at least you remember 5 to 6 different properties. The very first property is what? The magnetic lines of forces produced by a magnet, they are always forming a closed loop. Means if I just consider this is a bar magnet, then magnetic lines of forces, they originate from north pole and they will come to end on what? South pole, and from south they will move towards what? North pole. Means lines of forces, they are forming, magnetic lines of forces, they are forming what? A closed loop. But remember, here is the only difference where magnetic pole will differ from electric dipole. In electric dipole, no doubt, electric lines of forces, they originate from positive charge and they will come to end on negative charge. But here it is not necessary that electric lines of forces, they will form a closed loop. The second one, whenever you have to find out the direction of magnetic field at any point in the region of magnetic field, suppose here this is the region of magnetic field, P is some point in the region of magnetic field which is a point on some magnetic line of force. To find the direction of magnetic field at any point in the region of magnetic field, simply draw a tangent to the magnetic line of force in the direction of what? In the direction in which that line of force is traveling. Say that line of force is traveling from 1 to 2, then draw a tangent in the direction of what? In the direction of line of force, and that will gives you the direction of magnetic field at that point. Third one, how you can define the strength of magnetic field? It is defined as number of magnetic lines of forces per unit area. Number of, whenever you have to define what is the magnetic field at any point P in the region of magnetic field, number of magnetic lines of forces passing normally through a unit area drawn around a point will give you what? The strength of magnetic field at that point. And you know that no two magnetic lines of forces should ever intersect each other, because in case when they intersect each other, then at the point of intersection we will have two different direction of magnetic field, but this is not possible. It will violate the basic laws that every point in the magnetic field will have a unique direction of magnetic field. Again, what do you mean by a magnetic flux? Number of magnetic lines of forces passing through given area is called magnetic flux over that area. Then again you have to define what is the strength of magnetic field. Already we had defined number of magnetic lines of forces passing normally through a unit area drawn around a point is called magnetic field. Is called what? Strength of magnetic field B at that point. That is magnetic field B, it is always a ratio of magnetic flux to that of area, or B equal to phi divided by A. Consider the case where B is normal to the area, then in that case B must be equal to what? Magnetic field B, it must be equal to phi divided by area A. SI unit of magnetic field, that is strength of magnetic field, it is a Weber per meter square, because flux is measured in Weber. Area is measured in meter square. So Weber per meter square is what? SI unit of magnetic field, strength of magnetic field. Remember, it can also be measured in the unit of Tesla, denoted by a letter capital T, and 1 Tesla it is equal to 10 to the power 4 Gauss. Again, you know the basic property, already you had studied in 8th or 9th or 10th standard, that here as far as magnet is concerned, if we try to break the magnet into what? Smaller and smaller pieces,
every time we found that each small piece of magnet, it behaves like a magnet having two poles, north pole and south pole. It means you cannot separate one pole of magnet from the other. In other words, you can say the existence of isolated magnetic pole is not possible. Like poles attract each other, unlike poles attract each other, like poles repel each other. And whenever you suspend any freely magnet, whenever a magnet is suspended freely, what you will observe? It will come to rest, or it will align itself in what? North-south direction, because our earth, it behaves like a weak magnet, which was invented by William Gilbert. And as per William Gilbert, what you can say, as earth behaves like a magnet, and every magnet has a tendency to align itself in the direction of what? External magnetic field. So that's why whenever magnet is suspended or pivoted freely, then they will align themselves in the direction of what? Externally applied magnetic field. Now we will see the derivation part in our next period.